व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। आपका स्वागत है देश प्रदेश की खबरों में। और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। जयनगर पुलिस क्षेत्र में 2.5 करोड़ के सोना नकदी बरामद, गहना कारोबार में बड़ा खुलासा। वेल्लोर में AIADMK प्रदर्शन पर पुलिस ने रोक, कई कार्यकर्ता हिरासत में। पंजाब में 10 लाख तक मुफ्त और कैशलेस इलाज की घोषणा, केवल वोटर या आधार कार्ड से होगा लाभ। और अब खबरें विस्तार के साथ। जयनगर पुलिस क्षेत्र में 2.5 करोड़ के सोना और नकदी बरामद, गहनों की दुकान से जुड़ा बड़ा मामला सामने। दक्षिण विभाग के जयनगर पुलिस स्टेशन की सीमा में एक बड़े अपराध का पता चला है, जिसमें लगभग 2.5 करोड़ रुपए मूल्य के सोना और नकदी बरामद की गई। पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में एक ज्वेलरी की दुकान ने गहने बनाने के लिए एक व्यक्ति को सोना सौंपा था। करीब 40 दिनों की अवधि में उक्त व्यक्ति ने सोना किश्तों में प्राप्त किया, लेकिन जब गहनों को पूरा कर वापस करने का समय आया तो वो व्यक्ति अचानक लापता हो गया और फोन का जवाब देना बंद कर दिया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। In the Jayanagar police station limits in South Division, there has been a detection of a crime wherein gold and cash total valued at around 2.5 crores has been recovered. In this case, the jewelry shop, they had given gold to one person to make ornaments. This person received the gold throughout in a period of about 40 days, and afterwards when he had to return the completed ornaments, he has escaped and he was not found. He was not replying to any calls. So they have given a complaint that our gold has been missing, means the person has been missing and he has taken away the golds. Based on that complaint, our police have registered a case and recovered this property from the accused. The total value is around 2.5 crores, and we are verifying whether he is involved in any other such offence. The person was arrested and he is in custody. There is a case registered in Girinagar police station limits, wherein an accused by name Gani, he has been arrested, and more than 10 chain snatching cases have been detected. There have been these chain snatchings were in the city police station, in the Bangalore city police limits, in various stations. This particular accused is involved in more than 160 odd cases of such chain snatching in previous years, and some other cases also. So it is a serious issue why every time he is committing like this. So we have discussed this with our crime team, and our officers, senior officers, have been told that he should not repeat this offence and take into consideration all these things. We have stricter sections we can book against him. As of now, in this case, total value of 52.89 lakh worth of gold and two-wheeler has been recovered from his possession. आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वेल्लोर में AIADMK प्रदर्शन पर पुलिस ने लगाई रोक, कई कार्यकर्ता हिरासत में। वेल्लोर में AIADMK पार्टी द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन को पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा और शांति बनाए रखने के कारण ये फैसला लिया। इसके बाद पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए यह कदम आवश्यक था। वहीं AIADMK नेताओं ने पुलिस के इस फैसले की निंदा की और कहा कि उनका विरोध शांतिपूर्ण था। पार्टी ने कहा कि वे कानूनी माध्यमों से अपने अधिकारों की रक्षा करेंगे। ஆபரேஷன் தியேட்டர்ல ஒரு சுகாதாரத்துக்கு உண்டான 7 அறை இருக்குது. 7 அறையில ஒரே ஒரு அறை கூட ஒரு ஆபரேஷன் தியேட்டர் இல்ல. இப்படிப்பட்ட நிர்வாகம் இன்னைக்கு வேலூர்ல மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டல் கொடுக்குறாங்க. அதை கண்டிச்சு முக்கூர் சுப்பிரமணியன் அண்ணன் எடப்பாடியாரோட ஆணைக்கிணங்க பொறுப்பாளர் வருகை தந்துள்ளார். இந்த அளவுக்கு கீழ்த்தரமாக காவல்துறையை ஏவல்துறையாக வைத்து இன்னைக்கு அடக்குமுறை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். நீங்க
நான் என்ன எடுத்துட்டேன் டீ குடிக்க போறதா டீ குடிக்கறதா என்ன சார் அதிகமா இருக்குது டீ குடிக்க போற எதுக்கு நிக்கிறீங்க சொல்லுங்க டீ குடிக்க போறேன் நான் என்ன பண்ணோம் டீ குடிக்க போறேன் இருங்க ஒரு நிமிஷம் டீ குடிக்க போறேன் எதுக்கு நிக்கிறீங்க சார் நாங்க டீ குடிக்க போறோம் கொஞ்சம் கையிடுங்க சார் நாங்க டீ குடிக்க போறோம் சார் மாவட்ட செயலர் சார் மாவட்ட செயலர் வீடியோ வந்துடுப்பா வீடியோ வந்து ஒரு நிமிஷம் கேளுங்க டீ குடிக்க போறோம் நற்கடக்காரன் आइए अब देखते हैं अगली खबर। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने किया 10 लाख रुपए तक मुफ्त और कैशलेस इलाज का ऐलान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य में 10 लाख रुपए तक के मुफ्त और कैशलेस इलाज की घोषणा की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन इलाज के लिए पैसे की जरूरत होती है। खर्चों के कारण कई वरिष्ठ नागरिक इलाज से इनकार कर देते हैं और अपनी किस्मत पर छोड़ देते हैं। लोग जीवन को छोड़ देने की हिम्मत कर लेते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अगर हम लोगों की जिंदगी बढ़ा सके तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं। इलाज का 10 लाख रुपए का खर्च सामान्य बात है। पहले पैसे मांगे जाते हैं, लेकिन हमें देखभाल करनी चाहिए। आज का दिन बड़ा है क्योंकि हमने लोगों का इलाज सिर्फ वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड दिखाकर करने का फैसला किया है। गुरदास मान साहब ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਆਉਂਦਾ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਲਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਦਾਗ ਲਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕ ਜੂਗੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਵਿਕ ਜੂਗੀ। ਇਲਾਜ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਪੀਪਲ ਜਸਟ ਗਿਵ ਅਪ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਕੋਈ 90 ਸਾਲ ਦਾ, 95 ਸਾਲ ਦਾ, 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ 55-56 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ MP ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੀਪਲ ਜਸਟ ਗਿਵ ਅਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੈਂਡਰ ਹੀ ਕਰਤਾ ਲਾਈਫ ਕਿ ਬਸ ਸਾਡੇ ਤਾਂ 55-56 ਸਾਲ ਹੀ ਹੈ ਬਸ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕਰ ਜਾਈਏ ਕਿਤੇ ਵੀਰਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦੇਤਾ ਨਾ
1 ਸਾਲ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧਾਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹਵਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਓ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਆਉਣਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਆਓ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੈਨਲਡ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਜੇਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਬ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਲ ਦੇਖੋ, ਜੇਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਜੇਬ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੇਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਜਟ ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸੇ ਰਹੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਅੱਜ ਕहीं ਕੋਈ ਨੀਲਾ ਪੀਲਾ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਜਾਂ ਹਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਇਕੱਲਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਬਸ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮ 'ਚ ਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ, ਕੋਈ ਕੀੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਲ ਚੂਲ ਪਾਤੇ ਹੋਣੇ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇੜਾ ਦੇਤਾ ਹੋਣਾ, है ना, ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਜੀ, दुनिया आती है तो दुनिया जाती। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में कावेरी नदी का जलस्तर बढ़ने पर अनीकट बांध के गेट खोले गए। कावेरी नदी में जलस्तर बढ़ने के कारण मिदनापुर में स्थित अनीकट बांध के गेट खोले गए हैं ताकि बढ़ते जलस्तर को नियंत्रित किया जा सके। प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए बांध से जल प्रवाह बढ़ाया ताकि आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति से बचाया जा सके। जलस्तर पर निगरानी जारी है और लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केरल विश्वविद्यालय में एसएफआई कार्यकर्ताओं का घुसपैठ, गवर्नर पर विश्वविद्यालयों के सफ्रोनाइजेशन का आरोप। स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदस्य गवर्नर पर विश्वविद्यालयों में सैफ्रोनाइजेशन का आरोप लगाते हुए केरल विश्वविद्यालय के परिसर में घुस गए। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार विरोध किया, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। पुलिस ने कहा कि वे शांति बनाए रखने के लिए कदम उठा रहे हैं ताकि तनाव की स्थिति को रोका जा सके। प्रदर्शनकारियों ने विश्वविद्यालयों में राजनीतिक हस्तक्षेप और सांस्कृतिक बदलाव के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है।
मारना माइक मारना माइक मारना अब आइए देखते हैं अगली खबर। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे ने अंबोली थाने में दी शिकायत। युवती ने एमएनएस उपाध्यक्ष के बेटे पर लगाया गाली गलौज का आरोप। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर राजश्री मोरे, जिन्होंने कहा कि उनके साथ एक युवक ने सड़क पर गाली गलौज की, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज्य उपाध्यक्ष जावेद शेख का बेटा होने का दावा करता है। अंबोली पुलिस स्टेशन पहुंची राजश्री मोरे ने कहा कि मैं शिवसेना नेता संजय निरुपम का आभार मानती हूं, जिन्होंने मेरा समर्थन किया। हम यहाँ ये पूछने आए हैं कि सड़क पर महिलाओं के साथ गाली गलौज करने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कानून है और ऐसा व्यक्ति केवल नोटिस पर कैसे छोड़ दिया गया। इस पार्टी की लड़ाई मराठी बनाम गैर मराठी की है। वे मुझसे इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि मैं इस विभाजन का समर्थन नहीं करती। संजय निरुपम सर मेरे साथ यहाँ पे आए थे। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मेरे लिए आवाज़ उठाई है, वो मेरे साथ खड़े रहे हैं। मेरे लिए ये एक आश्चर्यचकित बात है कि संजय निरुपम सर ने मेरे लिए आवाज़ उठाई है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। और आज यहाँ पे हम इसलिए आए थे, ये पूछने के लिए आए थे कि जिस लड़के ने इतना गंदा व्यवहार किया रोड पे एक महिला के साथ, तो उसके लिए क्या कानून है और उसको कैसे नोटिस पे छोड़ा गया। मनसे और यूबीटी की ये जो लड़ाई थी, ये मराठी के अगेंस्ट लड़ाई थी, लेकिन आप तो मराठी मूवी हो, ये कैसी अलग लड़ाई चल रही है? हाँ जी, इस पार्टी की जो लड़ाई थी मराठी वर्सेस नॉन मराठी थी। और इसमें मेरे अगेंस्ट ये इसलिए खड़े हुए क्योंकि मेरी लड़ाई ये है कि मैं मराठी वर्सेस नॉन मराठी नहीं लड़ रही हूँ। मेरा ये है मराठी वर्सेस इंसानियत। हम एक भिन्न भिन्न जाति के लोग हैं, बट हम हिंदुस्तानी है। हमारा ये हिंदुस्तान देश है, इसमें धीरे धीरे बंटवारा हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। एक दूसरे के प्रति अब हमारे मन में घृणा आ रही है, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में द्वेष पैदा हो रहा है, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये सबको पता है कि आप बहुत अच्छी मराठी बोल देती है, आप मराठी है, लेकिन आप एक बिजनेस वुमेन भी है, क्योंकि आपका नेल आर्ट स्टूडियो है। आई चेक विद दैट। तो इस बिजनेस में क्या कोई इम्पैक्ट हो रहा है? आपको कैसी धमकियां आ रही है? क्या आपके कस्टमर्स पे इम्पैक्ट हो रहा है? ना जी, ना, बिल्कुल भी नहीं। मेरे बिजनेस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने बहुत मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा किया हुआ है, तो मेरे बिजनेस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और रही बात वो लोग जो मुझे टारगेट कर रहे हैं, वो कितना टारगेट और करेंगे। जब वो एक मराठी लड़की को नहीं छोड़ सकते हैं, तो आप लोग ये अंदाजा लगा लीजिए कि जो नॉन मराठी है उनके साथ क्या ही होता होगा। आपको धमकियां कैसे आ रही है? आपने कहा था कि ओशिवारा पुलिस स्टेशन में आपको धमकी आई है, तो इसीलिए क्या आप अंबोली पुलिस स्टेशन मतलब सिस्टम में भी भेजना हो रहा है? नहीं, मैं इसलिए अंबोली पुलिस स्टेशन में नहीं हूँ। मैं अंबोली पुलिस स्टेशन में इसलिए हूँ, जो मुझे मेरा टारगेट किया गया था, मेरी गाड़ी का जो एक्सीडेंट हुआ है, जो मुझे मेरी गाड़ी को मारा गया है, वो जो एरिया है वो अंबोली पुलिस स्टेशन में आता है। लेकिन आपको थ्रेट्स किस प्रकार के आ रहे हैं? किस प्रकार से आपको थ्रेट कर रही है? कैसे धमकियां? मुझे जो थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे ये कहा जा रहा है कि आप हमारे दैवत्य को
चुनाव क्या आप हमारे दैवत्य को नीचे गिरा रही हो। वो हमारे दैवत्य है, आप उनके खिलाफ बात मत करो। मैंने वो किसी के दैवत्य के खिलाफ बात नहीं की है। मैं भी बहुत आदर करती हूँ माननीय राज ठाकरे साहब का जी, बट मैं इसके खिलाफ हूँ कि मराठी वर्सेस नॉन मराठी। एक आखिरी सवाल मैम, आपकी आगे की स्ट्रैटेजी क्या है और आपका क्या प्लानिंग है? मेरी आगे की मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है। इतना जरूर है कि मैं अपने आप को न्याय दिला के रहूंगी और मैं अपने साथ जितने नॉन मराठी है मैं उनके साथ भी खड़ी हूँ। मैं पीछे नहीं हटने वाली। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर यूनियन मंत्री राजीव रंजन सिंह का जवाब। कहा, तेजस्वी के बयान गंभीर नहीं, पूर्व सरकारों की कार्यप्रणाली पर भी दे नजर। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि तेजस्वी के बयानों को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया है कि मुख्यमंत्री को किसी घटना पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए या केवल बयान देना चाहिए। ललन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव को अपने माता पिता के शासनकाल पर भी ध्यान देना चाहिए, जब संगठित अपराध, अपहरण और नरसंहार की घटनाएं होती थी। आजकल घटनाएं हर जगह होती है, लेकिन तुरंत कार्रवाई की जाती है और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। गोपाल खेमका हत्या के आरोपी सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। तेजस्वी यादव जी की बात पर कोई प्रतिक्रिया देना बकवास है, इसलिए कि वो उसी तरह की फालतू बात को में करते हैं। भाई कोई घटना घटती है तो मुख्यमंत्री एक्ट करता है कि मुख्यमंत्री उस पर बयान देता है? अरे मुख्यमंत्री एक्ट करते हैं और एक्ट का परिणाम दिख रहा है। जरा तेजस्वी जी अपने पिता का और माता के राज को भी जरा याद देखे ना, जहां संगठित गिरोह होता, अपराध होता था, जहां अपहरण का उद्योग चलता था, हर दूसरे तीसरे दिन अपहरण होता था, हर महीने कोई न कोई नरसंहार होता था। जरा उसको याद करें ना। भुला गए? कहां थे उस समय? तो बहुत छोटे होंगे ना, उनको कुछ याद भी नहीं होगा, और अगर याद होगा भी तो याद करना नहीं चाहते होंगे। घटना कहीं भी हो सकती है, घटना घटती है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता है। लेकिन घटना घटने के बाद त्वरित कार्रवाई करके अपराधियों को पकड़ा जाता है। जिस स्वर्गीय गोपाल खेमका जी की हत्याकांड की बात कर रहे हैं, आज सारे अपराधी पकड़ा गए, सारा उद्भेदन हो गया। लालू जी की राज में कौन सा कार्रवाई होता था? कौन सा कार्रवाई होता था? अपहरण का जब उद्योग चलता था, तरह तरह की चर्चा होती थी कि अपहरण का, फिरौती का रकम कहां पर तय होता है। ये सब राज भी देखा है बिहार ने 15 साल तक, और आज भी देख रहा है। 7 बजे शाम की बात छोड़ दीजिए, सूर्यास्त होने के बाद ही कोई घर से निकलना नहीं चाहता था पूरे बिहार में। आज 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे भोर में भी बिहार के किसी कोना से किसी कोना कोई जा सकता है। कानून व्यवस्था का कोई सवाल नहीं है। आपराधिक घटनाएं होती हैं, अपराधी कोई घटना करता है, लेकिन त्वरित कार्रवाई करके उसको गिरफ्तार किया जाता है, पुलिस कार्रवाई करती है। मुख्यमंत्री को क्या बोलने की जरूरत है? पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। लालू जी का राज है कि सिपाही से भी बतियाते थे। लालू प्रसाद जी के राज में लालू प्रसाद जी थाना में सिपाही से और दरोगा से भी बतियाते थे। आज 20 साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किसी एसपी से भी बात नहीं किया होगा, इसलिए कि मुख्यमंत्री जी डायरेक्शन देते हैं डीजीपी को, और डीजीपी कमांड है।
तो सिपाही जो बतिया लेता था लालू जी से, तो समझता था कि हम शेर है, बब्बर हैं। यही राज है। जरा लालू जी का राज को भी अध्ययन, आप अगर नहीं अध्ययन किए तो जरा बैठ के 1 दिन 2 दिन अध्ययन करना चाहिए तेजस्वी जी को। पूरा लालू जी के 15 साल के घटना क्रम को, पूरे 15 साल के राज में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या, कितना अपहरण हुआ, कितनी कार्रवाई हुई, कितने अपहरणकर्ता पकड़े गए, कितने लोगों को कितना फिरौती देके छुड़ाया गया, ये सब ना अध्ययन करना चाहिए उनको बोलने के पहले। सर लेकिन लगातार वो यह भी लोग मारे जा रहे हैं। पूर्णिया में 5 लोगों को डाइन बता के उनको लिंचिंग करके मार दिया जाता है, जला दिया जाता है। कार्रवाई होती है, हमने कहा कि घटनाएं होती है, घटना हो सकती है। हर घटना की सूचना पुलिस प्रशासन को नहीं होता है ना। घटना तो स्पॉन्टेनियस होता है, त्वरित होता है, और त्वरित घटना जब होता है तो उसका उद्भेदन भी होता है, और उद्भेदन होके उस घटना में शामिल लोगों पर कार्रवाई होती है। एक भी जो गोपाल खेमका हत्याकांड में जो कार्रवाई हो गई, कितने दिन के अंदर कार्रवाई हो गई। लालू जी के राज में एक बेचारी लड़की शिल्पी गौतम को अपहरण करके उसकी हत्या हुई। क्या हुआ बताएंगे वो बताएंगे कौन करने वाला था, ये सब बताएंगे, नहीं बता सकते हैं। इसलिए कि उनके राज्य में, श्री लालू प्रसाद जी के और श्रीमती राबड़ी देवी के राज्य में स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम होता था। आज घटना घट सकती है, घटना का उद्भेदन भी होता है, और अपराधी गिरफ्तार भी होते हैं, कार्रवाई भी होती है। और एक आखिरी सवाल सर, बिहार के आयोग का वोटर वेरिफिकेशन का SIR चल रहा है, उसको लेकर लगातार कल बिहार में बंद भी है, सभी पार्टियों ने, अपोजिशन के पार्टियों ने बंद का आह्वान किया है, और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र पर सीधा सीधा आघात है, वोटरों को, गरीबों के वोटरों को बाहर निकालने की साजिश है, डिलीट करने की योजना है सरकार। भाई एक बात हमको बताइए, इस देश में चुनाव में वोट देने का अधिकार किसको है? संविधान में लिखा हुआ है ना कि मतदान का अधिकार इस देश के नागरिक को है। अगर चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम तो इनरोल कराने के लिए किसी को कोई भी कर सकता है, दरखास्त दे दिया, इनरोल हो गया। अगर उसका वेरिफिकेशन हो रहा है कि वो इस देश के नागरिक हैं कि नहीं है, उनकी नागरिकता की सत्यता की जांच करा रहा है चुनाव आयोग, तो इसमें चिल्पो क्यों हो रहा है? इसमें चिल्लाने की क्या जरूरत है भाई? भाई जो है इस देश का नागरिक वो प्रमाण देगा। मुझसे भी अगर कोई मांगेगा कि आप इस देश के नागरिक हैं, प्रमाण दीजिए, तो हम देंगे, हम देने के लिए तैयार हैं। तो क्या कह रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग यही कह रहा है ना कि आप इस देश के नागरिक हैं कि नहीं हैं, उसका आप सत्यापन कराइए। तो सत्यापन आप नहीं कराइएगा, ये लोकतंत्र पर हाथ हो गया। अरे लोकतंत्र की रक्षा हो रही है, लोकतंत्र की रक्षा हो रही है। लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोकतंत्र का मतलब है कि इस देश के जो नागरिक हैं वो वोट देंगे, और अगर कोई सत्यापित करेगा कि हम नागरिक हैं तो उसको कैसे कोई वोटर लिस्ट से हटा देगा? लेकिन सत्यापन को ही आपको बुरा लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मन ही में घपला है ना। तो मन में पाप है तो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। चुनाव आयोग का कदम सही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
सीएम रेवंत रेड्डी के खुले बहस चुनौतियों पर बीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव का सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब में जवाब। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा खुले बहस की चुनौती के जवाब में बीआरएस कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराव आज सोमाजिगुड़ा प्रेस क्लब पहुंचे। उन्होंने कहा कि वे मुख्यमंत्री के आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वे नहीं आए। रामाराव ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री जगह और तारीख तय करे तो हम कहीं भी जाने के लिए तैयार है। उन्होंने कांग्रेस पर कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि तेलंगाना के लोग कांग्रेस पार्टी द्वारा किए गए धोखे को समझ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी इसे क्यों नहीं समझ पा रहे। एनडीए के लोगों ने रेवंत रेड्डी पर तेलंगाना सरकार को कांग्रेस का एटीएम बनाने का आरोप लगाया, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई या जांच नहीं तरह से उनकी जो रवैया है, इनकी जो सोच है, इनकी जो ढोंग है, ये सब हमारी तेलंगाना की जनता जान चुकी है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो पॉलिटिकल टूरिस्ट बन के आए, यहाँ पे SC/ST डिक्लेरेशन, BC डिक्लेरेशन, तेलंगाना यूथ डिक्लेरेशन, 2 लाख युवाओं को रोजगार, ये सब वादा किया। ये तेलंगाना की समाज आज हर चीज नोट कर रही है। आज मुख्यमंत्री के लिए हमने इंतजार किया, वो आए नहीं। हम तो तैयार है, आगे भी मुख्यमंत्री अगर प्लेस तय करेंगे, डेट तय करेंगे, जहां भी वो बुलाएंगे हम तैयार रहेंगे, हम आएंगे। और साथ ही साथ आखिरी में मैं इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी की गद्दारी, कांग्रेस पार्टी की जो फरेब आज तेलंगाना की जनता को समझ आ गई। पता नहीं क्यों मोदी जी को नहीं समझ आ रहा है। बार बार आते हैं मोदी जी और अमित शाह जी और कहते तो बातें तो बहुत करते हैं। आके कहते हैं कि रेवंत रेड्डी यहां पे तेलंगाना गवर्नमेंट को कांग्रेस पार्टी के लिए एटीएम बना दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं होता, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता, ना रेवंत रेड्डी पे, ना उनके मिनिस्टरों पे, ना उनके झूठे वादों पे, ना उनके किस्सों पे। मैं आपको 2 चीज सुनाता हूं। रेवंत रेड्डी ने अपने खुद के साले को 1100 करोड़ का प्रोजेक्ट दे दिया अमृत स्कीम में। उस पे हम गए दिल्ली, शिकायत किए, केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किए कि आप जांच करिए, कोई कुछ नहीं होता। यहां पे आते हैं, कहते हैं कि ये बड़ा वसूली कर रहे हैं, पर कोई कार्रवाई नहीं होता, कोई ईडी नहीं आती, कोई सीबीआई नहीं, कोई आईटी नहीं। साथ ही साथ यहां पे SLBC टनल टूट जाता है, कोई एनडीए से नहीं आता। यहां पे वट्टम पंप हाउस डूब जाता है, कोई एनडीए से नहीं आता। यहां पे पेद्दावागु प्रोजेक्ट बह जाता है, कोई एनडीए से नहीं आता। इस हद तक कि यहां के तेलंगाना जनता को समझ आ गया कि बीजेपी आज रेवंत रेड्डी को बचाने में लगी है। इसलिए मैं भाइयों में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि दोनों नेशनल पार्टीज ने तेलंगाना के साथ वादा जो किया उस पे वादा पे नहीं खड़े रहे, चीट किया। इसलिए हम हमेशा तैयार है, हमेशा तेलंगाना की आवाज बन के तैयार रहेंगे। आगे भी ये लड़ाई जारी रखेंगे। మీ అందరూ కూడా మళ్ళొకసారి హృదయపూర్వకంగా పెద్ద ఎత్తున వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. మా తమ్ముడు ఎర్రోల శ్రీనివాస్ గారు గుర్తు చేస్తా ఉన్నారు. అన్న, అశోక్ నగర్ లో రేవంత్ రెడ్డి గారు, రాహుల్ గాంధీ గారు 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తామని మన యువతకు ప్రామిస్ చేశారు మొదటి సంవత్సరంలోనే. ఈ రోజు వరకు 6,500 ఉద్యోగాలు కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భర్తీ చేయలేదు. ఆ విషయం గుర్తు చేయండి అని చెప్తా ఉన్నారు. రాష్ట్రంలోని యువతకు ఇవాళ అర్థమైపోయింది. 2 ఉద్యోగాలు సంపాదించుకున్నారు. ఒకడు రాహుల్ గాంధీ అక్కడ ప్రతిపక్ష నాయకుడు అయిండు, రెండోది రేవంత్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిండు. మీకు 2 లక్షల ఉద్యోగాలని చెప్పి మీ చెవులు. अब आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। श्री जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का संरक्षण और मरम्मत कार्य पूरा प्रशासन ने की बड़ी घोषणा। श्री जगन्नाथ मंदिर के प्रमुख प्रशासक अरविंद कुमार पधी ने बताया कि रत्न भंडार को 14 जुलाई 2024 को करीब 4-4.5 दशक बाद पुनः खोला गया था। इसके बाद आंतरिक और बाहरी रत्न भंडार से मूल्यवान वस्तुएं और आभूषण अस्थायी मजबूत कक्षों में स्थानांतरित किए गए थे। उन्होंने कहा कि इसके बाद पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने लेजर स्कैनिंग और गहन सर्वेक्षण किया। इसके बाद संरक्षण और मरम्मत कार्य 17 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 2 चरणों में संपन्न हुआ। पहले चरण में 17 दिसंबर 2024 से 28 अप्रैल 2025 तक चला, जबकि दूसरा चरण 28 जून 2025 से 7 जुलाई 2025 तक चला। The Ratna Bhandar of Sri Jagannath Temple, Puri, opened last year on the 14th of July 2024 after a long gap of 4.5 decades, and thereafter, as per the approved standard operating procedure of the government, the opening of both the inner Ratna Bhandar, that is the Bhitar Ratna Bhandar, and the Bahar Ratna Bhandar or the outer Ratna Bhandar was done. Thereafter, the valuables and jewelries were shifted from the
Vitara Ratna Bhandar and Bahara Ratna Bhandar to the temporary strong rooms. Thereafter, the Archaeological Survey of India, which is responsible for the conservation and repair of the Ratna Bhandar and the Sri Mandira. It was the laser scanning and the radar penetrating survey was done. And as per the recommendations of the technical experts, namely the CSIR Institute, NGRI, National Geophysical Research Institute in Hyderabad, after the survey works, the conservation and repair works were taken up since 17th of December 2024. And in two phases, in the first phase from the 17th of December 2024 till the 28th of April 2025, and thereafter after the Sri Gundicha Jatra on 27th, on 28th of June 2025 till today, 332 hours 47 minutes of conservation works were taken up for 95 days, and the conservation works were scientifically done by the experts of ASI and all the kind of technical artisans. And today I am very happy and proud and privileged and blessed to inform you that the conservation and repair works of both the inner and the outer Ratna Bhandar of Sri Jagannath Puri, Sri Jagannath Temple Puri is now complete. So we, as per the standard operating procedure approved by the government, now the valuables would be shifted from the temporary strong rooms to the original Ratna Bhandars, and thereafter the inventarization work will commence, and government has already appointed a high-level committee headed by Justice Rath. They will assist the Sri Jagannath Temple Managing Committee in inventarization of all the valuables. So we would say that this is all the blessings and grace of Mahaprabhu Sri Jagannath that has come to this stage. Thank you so much. Jai Jagannath. आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार मंत्रिमंडल ने मंजूर किया युवाओं के लिए आयोग गठन और महिलाओं को 35% आरक्षण का फैसला। बिहार के मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव युवाओं के लिए यूथ कमीशन का गठन है। मुख्य सचिव के अनुसार यह आयोग 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं से जुड़ा होगा, जिसमें 1 अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होंगे। इस आयोग के दायरे में ऐसे युवा आएंगे जो राज्य से बाहर काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। उच्च माध्यमिक और स्थानक स्तर के छात्र, बेरोजगार युवा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र तथा अन्य ऐसे युवा जिन पर आयोग को हस्तक्षेप करना आवश्यक समझेगा। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 43 एजेंडों पर निर्णय हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है वह है बिहार में युवा आयोग का गठन करने के संबंध में है। युवा आयोग 18 वर्ष से 45 वर्ष युवाएं जो हैं उनसे संबंधित है। इसके लिए 1 अध्यक्ष होंगे, 2 उपाध्यक्ष होंगे और 7 सदस्य होंगे। इसमें इस आयोग के द्वारा युवाओं से संबंधित जितने कार्य हैं उसके बारे में विचार करेगी। आयोग में जो लाभ समूह हैं जिनसे संबंधित है वह राज्य के बाहर काम करने वाले, अध्ययन करने वाले बिहार के प्रवासी युवा आयोग में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र, डिग्री पाठ्यक्रम करने वाले छात्र, बेरोजगार युवा, आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र और युवाओं का अन्य कोई समूह जिन्हें आयोग हस्तक्षेप योग्य समझे। तो एक नया आयोग आज सरकार ने नया गठन करने का निर्णय लिया है, वह है युवा आयोग। दूसरा, सामान्य प्रशासन से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें बिहार राज्य के सभी सरकारी सेवा संवर्गों में सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थी को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। इसका मतलब है कि जो मूल निवासी हैं बिहार के महिलाएं, उन्हीं को ही 35% क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होगा। और जो आरक्षण का जो श्रेणी है, अनुसूचित जाति 16 है, अनुसूचित जनजाति 1 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 18 है, पिछड़ा वर्ग 12 है और पिछड़ा वर्गों की महिलाएं 3 है। तो 50% यही इसका ब्रेकअप। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य किसानों को डिजिटल और एआई तकनीकों से जोड़ना है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता भारत के किसानों को डिजिटल और उन्नत तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ने की है। इसी उद्देश्य से पिछले वर्ष के बजट में शिक्षा विभाग को कृषि में एआई के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सपना है, उनकी प्रतिबद्धता है भारत के किसानों को डिजिटल टेक्नोलॉजी में जोड़ना, एआई जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना। इसलिए बीते साल बजट में उन्होंने शिक्षा विभाग को दायित्व दिया था कृषि में एआई का प्रयोजन के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाए। रोपर आईआईटी ने इस प्रकार के एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एआई को यूज करने के लिए खोला है। आज मेरठ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में रोपर आईआईटी के साथ कोलैबोरेशन में एक टेक्नोलॉजी हब की आज शुभारंभ किया गया, जिसके माध्यम से पहली बार भारत में किसान अपने ऐसे तो टेक्नोलॉजी यूज करता है, मशीन तो खेतों में यूज करता है, उसमें सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी एआई को उसमें से यूज करके किसानों की एम्पावरमेंट किया जाएगा, उसकी आमदनी को दुगनी किया जाएगी, उसकी प्रोडक्ट को, उसकी उपज को उचित मूल्य मिले, बाजार के साथ तो सविशेष तथ्य के साथ जुड़े रहे। यही इसी उपक्रम का सबसे बड़ा उपलब्धि रहेगा। मैं बधाई देता हूँ मेरठ की और उत्तर प्रदेश की किसानों को, मैं बधाई देता हूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, मैं धन्यवाद देता हूँ रोपर आईआईटी को। देखिए 2014 में जब मोदी जी शासन की दायित्व में आए देश में, तब नगण्य मात्रा में 200-250 करोड़ रुपया की एथेनॉल खरीदी होती थी। आज विशेष नीति बना के किसानों की जेब में सीधा पैसा जाए, इसीलिए मोदी जी ने एथेनॉल की नई नीति लाई, नई पॉलिसी लाई। आज किसानों से 40,000 करोड़ रुपया की एथेनॉल की खरीदी की जा रही है। ये सीधा लाभ उत्तर प्रदेश की गन्ने किसानों को जाता है। देश की एथेनॉल की इकोनॉमी से जुड़े हुए जो किसान भाई है, उन्हीं की जेब में पैसा सीधा जाता है। पिछले आज़ादी के उपरांत सबसे किसान हितैषी, किसानों के लिए अगर सबसे ज़्यादा काम नीति के ऊपर और कार्यक्रम के ऊपर किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब अगली खबर, मंत्री आर बिंदु ने कोट्याम अस्पताल हादसे के शिकार परिवार का किया दौरा, नए घर के निर्माण का दिया आश्वासन। मंत्री आर बिंदु ने कोट्याम अस्पताल की इमारत गिरने की दुर्घटना में प्रभावित परिवार के घर पहुंचकर उन्हें सांत्वना दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनके लिए नया घर बनाया जाएगा, जिसमें स्थानीय एनएसएस और दानदाताओं का सहयोग लिया जाएगा। मंत्री ने प्रभावित परिवार के साथ बात कर उनकी परेशानियां समझी और पुनर्वास में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आइए अब डालते हैं नजर अगली खबर पर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्री भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन देवस्थानम में दर्शन किए। कृष्णा नदी में जल हारती में लिया हिस्सा। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने श्री भ्रामरंबा मल्लिकार्जुन देवस्थानम में आस्थापूर्ण दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने कृष्णा नदी के तट पर जल हारती कार्यक्रम में हिस्सा लेकर धार्मिक अनुष्ठान किया। यह अवसर श्रद्धालुओं के लिए एक पावन क्षण था, जिसमें मुख्यमंत्री ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया।
केरल सरकार ने जताई सफाई। टूरिज्म मंत्री मोहम्मद रियाज ने कहा, ज्योति मल्होत्रा को पहले से ही एजेंसी ने आमंत्रित किया था, सरकार का चयन में कोई रोल नहीं। टूरिज्म मंत्री मोहम्मद रियाज ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा के मई महीने में पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में गिरफ्तारी के बाद उठे आरोपों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ज्योति मल्होत्रा को संबंधित एजेंसी ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहले से ही आमंत्रित किया था और केरल सरकार का इसमें कोई चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं था। ये बयान सरकार द्वारा आरोपों से दूरी बनाने के लिए दिया गया है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। धार्मिक परिवर्तन गिरोह के मुख्य साजिशकर्ता चंगूर बाबा की संपत्तियों के ध्वस्त किए जाने पर यूपी मंत्री अनिल राजभर का बयान। उत्तर प्रदेश के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि चंगूर बाबा ने धार्मिक परिवर्तन के माध्यम से अपार संपत्ति अर्जित की है। उन्होंने कई महिलाओं की जिंदगी को बदला, जो लगभग देशद्रोह के बराबर है। इस गिरोह में 18 लोगों के नाम हैं, जिनमें एक पूर्व मंत्री भी शामिल है। इस नेटवर्क का विस्तार 40 देशों तक है और ये देश के खिलाफ विदेशी साजिश का उदाहरण है। उन्होंने एक पेड़ मां के नाम पहल पर भी कहा कि प्रधानमंत्री ने ये पहल शुरू की है। पूरे देश में इसका पालन हो रहा है और उत्तर प्रदेश सरकार भी इसके साथ जुड़ी हुई है। हम जनता से अपील करते हैं कि वे इस अभियान में सक्रिय रूप से भाग लें। हो गई है, किस तरह से इस पूरी कार्यवाही को आप देखते हैं? देखिए, जलाउद्दीन उर्फ छांगुर बाबा धर्म परिवर्तन कराकर अकूत संपत्ति उसने कमाई है और मुझे लगता है कि अभी तो ये शुरुआत है। गलत तरीके से संपत्ति कमाना और धर्म परिवर्तन बेटियों बहनों के जीवन को बर्बाद करके जो उसने काम किया है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रद्रोह जैसा गुनाह उसने किया है। तो इस तरह से संपत्ति अर्जित करना, बुलडोजर तो चलना ही है और बुलडोजर कार्रवाई सरकार कर रही है। अभी आप देखते जाइए, अभी तो 18 लोगों के नाम सामने आए हैं। कोई पूर्व मंत्री का भी नाम सामने आ रहा है, एक धर्म विशेष के मंत्री का, और भी पता नहीं कितने लोग शामिल इसमें होंगे। अभी भी पता नहीं कितनी संपत्ति का पता लगना है। 40 देशों का नेटवर्क और जिस तरह से देश के खिलाफ ये घिनौनी साजिश देश की सीमा के बाहर से हो रही है, उसका भी एक उदाहरण है। ये सरकार ने पहले कहा कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई हो रही है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम का अभियान शुरू किया और आज पूरा देश उसका अनुसरण कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर वृक्षारोपण कराकर उस अभियान को सार्थक बनाने का काम किया है। हर वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार एक नया रिकॉर्ड बनाती है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे जो ग्रीन क्षेत्र है, हरित क्षेत्र में एक भारी वृद्धि देखने को हमें मिली है। लेकिन जनता से भी हम लोग अपील करना चाहते हैं कि सरकार का कोई भी नारा तब चरितार्थ होता है, तब सफल होता है, तब सार्थक होता है जब जनता अपने आप को उसमें भागीदार बनाती है, जनता अपने आप को उसमें जोड़ती है। और इसीलिए ये निरंतर इस कार्यक्रम को हम चलाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी चलाती है। ये कांग्रेस के बस की बात नहीं है कि कभी समाज को बचाने का, धरती को बचाने का काम करे। ये कांग्रेस पार्टी की परंपरा ही नहीं है। तो अजय राय को क्या जानकारी होगी? अजय राय को कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ नकारात्मक बात करने के अलावा कांग्रेस पार्टी को कुछ आता ही नहीं। तो अजय राय से हम लोग क्या उम्मीद करें? उनके नेता से हम लोग क्या उम्मीद करें? लेकिन सरकार हमेशा इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं कि पूरे दुनिया में उन्होंने पूरे दुनिया के वातावरण को बेहतर बनाने के लिए, धरती माँ की सेहत को ठीक करने के लिए आज उनके नेतृत्व में पूरे दुनिया की को इस ग्लोबल जो वातावरण खराब हुआ है
उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भारत ने लिया है। भारत इसकी अगुवाई कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो इतना बड़ा काम देश के अंदर हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग जनता से अपील करना चाहते हैं कि लगातार जो सरकार काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार जो इस क्षेत्र में लगातार प्रयास कर रही है, उसमें आप सब लोग अपने आप को भागीदार बनावें, तब जाकर ये नारा चरितार्थ होगा, ये अभियान पूरा होगा। और अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी शुभा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।